Hi, good afternoon everyone. This is Khyati Rupani from balancenutrition.in. You know what we do? We have lifestyle management programs. Yes, our programs ensure that you, none other than anyone else, get the best knowledge wherever, however, and whatever you all do. Right? We tackle, as nutritionists, skin problems. We tackle problems with hair fall. We also tackle problems with your hormones, and we tackle just about anything that has to do with what you put in your mouth. Right? So I think we have quite a lot of people who have joined us, and today's topic was something extremely interesting. We have got a series of questions also, and those questions, I think, Kailash, you haven't WhatsApped them to me. Can you WhatsApp them to me, please? So those questions are questions which are going to help you all understand what is exactly hair loss, what exactly does stress do, what are the causes of hair fall, and what should we do to make sure that our skin and hair looks amazing all the time. So how about the topic for today? Are you guys okay with this topic? Shall we talk about hair care? Shall we talk about skin care? Shall we talk about anything and everything under the sun, right from causes to your nutrition in healthcare? If it is a yes, then please type yes and start typing your questions. Shelly saying yes, we can. Shilpi, how about you? Shall we go ahead? Yeah, all of those who are watching us, shall we go ahead? So first of all, I think, yes. Ashu, shall we talk about skincare? Shall we talk about hair? Yes, Jyoti, hi. Yes, Anjana also says yes. A lot of them are saying yes. What is it that troubles all of us, whether it is women or whether it is men? है ना? I think what troubles me the most is seeing my hair fall. है ना? And we are supposed to be blamed all the time. है ना, Jyoti? Whenever somebody is going on a diet, सबको लगता है नहीं भाई, आपका हेयर लॉस आपकी डाइट की वजह से ही हो रहा है. Well, that cannot be ruined and that cannot be, I cannot say that नहीं वो नहीं होगा. ठीक है ना, वो 100% पॉसिबल होगा if your diet is a Google diet, if your diet is not personalized for you, and if your diet is not making any sense. Hi Amisha, how are you? How are you all of you? My hair has grown long ना अंजना, वरी लॉकडाउन क्या करे, घर में बैठे है ना. Yes Monica, we will also talk about dark circles. Yes. Shelly saying my hair gets oily every second day and starts falling. Correct, yes. For once, let's talk about the main reason for hair loss. ठीक है ना? You think hair care, hi Jigna, you think hair care जो है या hair loss जो है वो अपने आप ही होता है? नहीं. Let's go to the roots. ठीक है ना? जब हम पैदा होते हैं, all right, all of us are born with a set number of hair follicles. ठीक है ना? ये हेयर फॉलिकल्स ना तो आगे जाके पैदा होते हैं ना ये आगे जाके कम होते हैं till you reach a certain age where I'll come about balding. Yes, hi everyone, I know all of you have joined in. Yes, Shilpi, we'll even talk about dandruff, we will talk about male balding, we will talk about female balding, सब कुछ करेंगे. अब लेकिन guys, I think yes Preeti, we'll also talk about wrinkle and dry skin. Done guys, आज का सेशन पूरा स्किन एंड हेयर पे है. राइट तो अब शुरू करते हैं कॉजेज ऑफ हेयर फॉल से. एंड वेयर आई वॉज ओनली वन वेरी बेसिक टॉपिक विच वॉज पैदा होते वक्त हम सबके पास, ऑल ऑफ अस आर born with a set number of hair follicles. ठीक है ना. अब किसी के बाल जो टेक्सचर होता है, किसी के बाल पतले होते हैं, किसी के बाल थिक होते हैं, किसी के बाल कर्ली होते हैं, किसी के बाल वेवी होते हैं और किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट वी आर born with. जब हम छोटे होते हैं ना, तब हम, हाई कटरीना, हाउ आर यू, हाई एवरीवन, तब हम लोग क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू व्हेन वी आर किड्स? तब तो मम्मी के हाथ में बाल होते हैं, isn't it? That time we either keep it short, we are regularly tying our hair, we are regularly making sure that हम शैम्पू करें और हम उसे हेल्दी रखें, है ना. तकलीफ कहाँ शुरू होती है? एंड दैट टाइम we don't see any hair fall. Hi everyone, we don't see any hair fall right till we are in 9th or 10th standard.
अगर कोई हेयर फॉल हमारा बचपन में ही होता है, उसका मतलब ये है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ द डाइट. ओके, जनरली हेयर फॉल डज नॉट स्टार्ट एट दिस एज. Now, hair fall starts the moment you are getting exposed to the salon. ठीक है ना. सबसे पहला आर्टिफिशियल वेज वेर योर डाइट इज नॉट प्लेइंग अ रोल बता देती हूँ आपको. हम शुरू हो जाते हैं हेयर स्टाइलिंग करके, है ना. हेयर स्टाइलिंग में हम हमारे बाल लेयर्स में काटते हैं, राइट. इट इज अ प्रूवन फैक्ट कि जिसके बाल लेयर्स में कटे होते हैं वो बाल ज्यादा पतले होते हैं. Okay, they start thinning at the edges. See, even mine, little thinning at the edges is happening. See, है ना? Can you see everyone? Thinning at the edges, है ना? That is because मेरे तो layers मैंने minimum करवा रखे हैं, but still thinning is happening. तो thin होके बाल हमारे पूरे नीचे से खराब होने लगते हैं, right? That is called as splitting of the hair, dryness of the hair down, right? That is something we cannot ignore. अब आया पार्ट नंबर 2. हम अब कलर करना शुरू करते हैं. इन कलर्स हमको हाईलाइट्स अच्छे लगते हैं, हमको आयन अच्छा लगता है. वी लाइक ब्लो ड्राइंग आवर हेयर, वी लाइक यूजिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन आवर हेयर. फॉर अ लॉन्ग टाइम आई लव्ड रेड हेयर. मेरे रेड स्ट्रीक्स बहुत टाइम तक थे. yes, they do harm. okay, so जब आप ये सोचोगे कि कलर करके स्ट्रीक करके कोई ऐसा शैम्पू है या कोई ऐसा स्पेशल मास्क है जो आपके बालों को बचाएगा, नो. ओके, एनी केमिकल वेदर इट्स अमोनिया फ्री, नेचुरल, whatever. हाँ, henna, your pure मेहंदी is a conditioner when applied with a lot of dahi. Yeah, it's called curds. So mehendi with curds is something that will make sure that you don't get a instant reaction. Okay, अब हो गया हमारा आर्टिफिशियल तरीका फॉर मेकिंग श्योर हमारे बाल और खराब होते जाए. नेक्स्ट इज हमारे बालों का ज्यादा ध्यान नहीं रखना. ओके, व्हाट हैपेंस हियर इज द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी गेट अ लिटिल केयरलेस अबाउट आवर हेयर, है ना. आज नहीं, कल करती हूँ, है ना. हमें रात को जब याद आता है कि हमको हेयर को ऑयल करना है, वी बिकम वेरी केयरलेस अबाउट दैट फैक्ट, इजंट इट. मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने बालों को ऐसे ऊपर करके, माई फेवरेट इज टू पुट अ क्लिप एंड फॉरगेट अबाउट इट, है ना. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑल्सो दैट वी आर नॉट टेकिंग एक्स्ट्रा केयर ऑफ आवर हेयर, जो हमें करना चाहिए. अब आते हैं इंटरनल फैक्टर्स दैट लीड टू हेयर फॉल. ठीक है ना. सबसे बड़ा फैक्टर है न्यूट्रिशन. ऑलराइट, if your hair is falling excessively in terms of पूरे बाल झड़ के हाथ में आ जाना, 100 बाल जो होते हैं दिन में झड़ते ही है, which is coming in your brush. See, even in my brush, can you see everyone? Can you see the hair loss? Here, see there is one strand, there is, see, that's it. Okay, yeah, can you see? ये ठीक है. I can at least see the bristles. I can see the edge, right? I can see the edge. I can see the brushes. बाल ब्रश में नहीं है. This is called natural hair fall, जिसमें से about 8 to 10 बाल आपको दिखते होंगे. Yeah, 8 to 10 hair. Can you see? Can you see this part? It's absolutely clear. आपको सबको दिखता है ना? Correct? So this is normal hair fall. हेयर फॉल के न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कॉजेज बता देती हूँ. सबसे पहले कॉजेज क्या है? कॉजेज है आपके खाने में ज्यादा, ओके, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर्स. जी हाँ, हाई शुगर डाइट्स कॉज अ लॉट ऑफ हेयर फॉल. यस. अब आप बोलेंगे मैं तो मिठाई खाती नहीं हूँ, लेकिन क्या आपने केचप खाया था? क्या आपने आपके किसी डिश में शक्कर, गुड़, क्या आपने बिस्किट खाई? क्या आप रोज बिस्किट खाते हो? क्या आप चलते चलते कुछ स्वीट मुंह में डाल देते हो? क्या आप मेलेडी या कोई छोटी चॉकलेट खाते हो? राइट, इजंट इट? दैट इज अ बिग रीजन फॉर हेयर फॉल. शुगर इज समथिंग दैट डज नॉट अग्री विथ योर हेयर हेल्थ एट ऑल. हेयर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना आपका, वो बना हुआ है एक प्रोटीन से, एंड द नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज कॉल्ड केराटिन. ओके, सो केराटिन इज अ प्रोटीन, एंड प्रोटीन में अगर आप हाई फैट खाना खाओगे, एंड फैट में भी कौन सा फैट पता है? गंदा वाला फैट. द फैट दैट इज कमिंग आउट ऑफ योर बटर्स, द फैट दैट इज कमिंग आउट, और दैट इज अ प्रोडक्ट when you are eating your pav bhaji, when you are eating your chips, and when you are eating packaged foods.
तो अब आप अपने आप को जरा एक क्वेश्चन पूछो कि मैं विजिबल शुगर कितनी खाती हूँ और इनविजिबल शुगर कितनी खाती हूँ. हमने 2 दिन पहले ना एक पोस्ट किया था एंड दैट पोस्ट रीच्ड अ बिग लेवल. ओके, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड आपको पता नहीं होता है. आप लोगों के घर में सैलड खाना होता है, लेकिन बहुत सारों के घर में वो आजकल सैलड ड्रेसिंग्स आने लगी है, क्योंकि 3-4 इंडियन कंपनीज अच्छी अच्छी ड्रेसिंग्स बनाने लगी है. 1000 आइलैंड, आपको पता है मेयोनेज में भी शुगर्स है. आपको पता है जो जूसेस आते हैं टेट्रा पैक्स, उसमें ये लोग कहते हैं कि नो एडेड शुगर, बट नो, देयर इज अ लॉट ऑफ शुगर एनीवेज, राइट. तो आपको ये याद रखना है कि एनी काइंड ऑफ शुगर, ठीक है ना. हाय अश्विनी, हाय एवरीवन. यस, आई हैव रेड थायराइड एंड yes, I am coming to that. Understood? So what you have to realize is आप कितनी शुगर खा रहे हो, नोट डाउन करो. ओके, नोट डाउन करो वो एक्स्ट्रा बिस्किट, नोट डाउन करो चीजें यहाँ वहाँ, isn't it? So first point is a high sugar diet. Second point is high packaged food diet. पता है एक तो हम रहते कैसे, आपको पता है there was a fashion era जब हम 1980s की फिल्में देखते थे, वेदर इट वॉज जया बच्चन, वेदर इट वॉज रेखा, वेदर इट वॉज एनीवन, यू नो, दे हैड सच लॉन्ग ब्यूटिफुल हेयर, डिडंट दे? एंड ऑल दीज बहू वाले रोल्स में वो लोग या तो लंबे खुले रखते थे, है ना, और या तो फिर इतनी थिक आशा पारेख के बाल देखे, इतनी थिक चोटी बनाते थे वो लोग. वो क्यों करते थे? क्योंकि तब उस टाइम पे दे डिड नॉट हैव व्हाट वी कॉल एज आयंस, they did not have layers. at the most एक साधना कट था, पता है, बैंग्स आते थे, लेकिन वो इतना सा ही था. बाकी के लिए ये लड़कियां या ये ब्यूटिफुल women never bothered about styling their hair so much, है ना. सो आपको ये याद रखना है कि the more you style your hair, the more you know cut your hair in layers, the more you are playing with your hair, of course ये फर्क पड़ेगा. उसके ऊपर आपका पोल्यूशन देखो, है ना. आपको पता है पुराने जमाने में बाल कैसे सुखाते थे? Yes, the women used to take a special towel which was a very thin muslin cloth, और वो अपने बालों में बांध के अपना काम करना शुरू कर देते थे. और फिर जब थोड़ी सी फुर्सत मिलती थी छत पे जाके, है ना, they used to dry their hair in natural sunlight. अब कौन करता है? Imagine natural sunlight and protein. What a glow, a natural glow on the hair. अब कोई नहीं करता, है ना. तो ये सारी, और पता है आपको जो सन रेज मिलती है उससे आपके स्कैल्प में अगर कोई बैक्टीरिया होगा वो भी अच्छे से क्लीन और किल हो जाता है. Alright, so that was the reason that these women used to tie that and make sure that they dry their hair very nicely. Alright, अब हम क्या करते हैं, हाई रेडिएशन का या हाई पावर का फटाफट एक हेयर ड्रायर लेके अपने बाल सीधे करते हैं, isn't it? Now comes point number 2, and that point number 2 is I was talking about packaged foods. पता है तब के जमाने में ब्रेड भी बड़ी मुश्किल से घर में आता था, isn't it? At that time सारा खाना was at home. तभी चीज का भी, जो हमारी लाइफ में चीज का रोल है वो था ही नहीं. जो हमारी लाइफ में आज बिस्किट का रोल है, even that wasn't there. They were not playing any role, right? These women, that's why naturally had extremely good hair. What we have to now do is, हम तो पोल्यूशन में रहते हैं, हम तो खैर सनलाइट में जाते भी नहीं है इतने आजकल. ये लॉकडाउन हैज रिलैक्स्ड अ बिट, बट स्टिल वी आर नॉट गोइंग आउट एज मच एज वी डिड. यस, हम कलर करते हैं क्योंकि हमको हमारे ग्रे बाल पसंद नहीं है, है ना. एंड हम हमारे पोल्यूशन एज वेल एज पैकेज्ड फूड्स को भी टाटा बाय बाय नहीं कह सकते, isn't it? तो हम अब क्या करें? What should we do? Well, what we must do is take care of just a few things. Point number 1, Indian diets and protein. Okay? आपको ये याद रखना है. अगर आपको अच्छे सॉफ्ट बाल चाहिए, अगर आपके बाल कर्ली है यार तो कर्ली रहने दो. अगर आपके बाल वेवी है, try and keep the texture of your hair as it is, because artificially जो भी करते हो उसमें the damage done to your hair is excessive. कोई बाल ही ना बचे, उससे बेटर है कि जो है उसमें खुश रहो, है ना. Right? So that is what I say. That it's better to have your natural hair rather than having no hair at all in 5 years, right? So now comes the point of protein, okay? Protein consumption in a regular Indian vegetarian diet is always lower than the lowest limit, ठीक है ना. हम खाते हैं रोटी, सब्जी, दाल, okay, चावल, isn't it? Salad आए ना आए.
लेकिन हमारा कार्ब कंजम्पशन जो आगे जाके शुगर बन जाता है वो काफी हाई होता है, isn't it? We have a very high carb diet, naturally टेंडेंसी ही ऐसी है, और हमारी प्रोटीन काफी कम होती है. हमारे जो वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज है, जैसे कि पल्सेस, जैसे कि स्प्राउट, जैसे कि आपकी दाल, जैसे कि आपका चना, ये सब भी कार्बोहाइड्रेट रिच तो है ही ना, थोड़े से कार्ब्स है उसमें. नेवरदलेस आपको नॉन वेजिटेरियन बनने के लिए नहीं कह रही, आई एम जस्ट सेइंग दैट आज अगर आपका नाश्ता शाम का, व्हाट इज योर टिपिकल नाश्ता? योर टिपिकल नाश्ता शुड बी चना चोर विच इज रोस्टेड. योर टिपिकल नाश्ता शुड बी स्प्राउट चाट. योर टिपिकल नाश्ता शुड बी एनीथिंग विच इज प्रोटीन रिच. स्प्राउट्स का चिल्ला बना लिया, ग्रीन मूंग दाल का चिल्ला बना लिया, उसमें थोड़े what will I put this time? I will put little grated paneer in it. मैंने उसको दही में मैरिनेट करके उसका चिल्ला बनाया, डबल प्रोटीन कर दिया उसे. डिम्पल, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम जिसको हो, that is a very different connection. Right now I am talking about a normal person who is even overweight and has no medical issues like uric acid, जहाँ प्रोटीन बीच में आ जाए. आपका यूरिक एसिड, I will take care of it. I will have the team talk to you. ठीक है ना? Now it comes to proteins. So आप लोग मुझे प्रॉमिस करो कि आप इवनिंग स्नैक में प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं लोगे. I gave you all 2 examples. One is a sprout chaat. One is a chilla that is made out of any dal where you can sprinkle your paneer and उसका आप आटा भी दही या बटर मिल्क छाछ से बना सकते हो. Isn't it? Your breakfast also can be a protein rich breakfast. ठीक है ना? अब बात करते हैं प्रोटीन रिच सीड्स की. आप डाइट में थोड़ी सी फ्लैक्स सीड्स डालो, ठीक है ना. आप डाइट में पंपकिन सीड्स डालो. पंपकिन सीड्स मगज के बीज. जी हाँ. आप एप्पल खा रहे हो, है ना, एक कट फ्रूट खा रहे हो, या आप फ्रूट बोल खा रहे हो, आपके बालों को जरूरी वाइटामिन जो है, जिस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वाइटामिन वेरी सून, वो भी मिल जाएंगे, है ना. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यस नेत्रा प्रॉमिसेस शी इज गोना हैव अ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट. जो नॉन वेजिटेरियंस है, आपको तो एग वाइट्स, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. क्या टोफू एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है? हाँ, जरूर. आप सोयाबीन रोस्टेड खा सकते हो, जरूर, व्हाई नॉट. ओके, सो मेक श्योर दैट योर डाइट इज गोइंग अप ऑन द प्रोटीन. ऑलराइट, अब आई बात हमारी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की. पता है, एक बहुत बड़ा फूड ग्रुप है जिसका नाम है, एक का तो है वाइटामिन्स. यू ऑल नो व्हाट वाइटामिन्स आर, राइट? और एक का नाम है मिनरल्स. यू नो, कभी सुना है मिनरल्स? और उसमें भी ट्रेस मिनरल्स. आपको पता है, अगर आपकी आयरन डेफिशिएंसी है, यू नो, जो आयरन डेफिशिएंसी हीमोग्लोबिन लो के पकड़ में आ जाए, उसको कहते हैं एनीमिया. लेकिन आपकी बॉडी में फ्री आयरन होता है, आपकी बॉडी में बॉन्डेड आयरन होता है, आयोनिक आयरन होता है. ये सारा आयरन, it is found that 80% women in India have some sort of iron deficiency or the other, whether it comes in your blood report or no. हम तो काफी सारे लो हीमोग्लोबिन से ही जूझ रहे हैं, isn't it? So I want you all to make sure that you all add iron in your diet. Iron is something that इज वेरी ग्रांटेड. हम सबको लगता है ठीक है ना, आयरन ही तो है, हमको खाना है. लेकिन नहीं, आपकी एनर्जी लेवल्स जो ऐसी है, आप अगर काफी मोटे हो, इफ यू इंटरेस्टिंगली फैट एंड फैट एट द एब्डोमेन, और इफ यू आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम बॉडी फैट इश्यूज, आयरन इज अ वेरी साइलेंट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट नॉनदलेस. Why and how will you get iron? नॉन वेजिटेरियंस जो है, आपको आयरन मिलेगा आपके मीट से. ओके, आपको चिकन से मिल सकता है, आपको मटन से मिल सकता है. वेजिटेरियंस जो है, आपको डिपेंड करना पड़ेगा समथिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. इस सीड का नाम है हलीम और इट इज कॉल्ड गार्डन क्रेस. जी हाँ, ओके, गार्डन क्रेस सीड्स जो है वो मिल जाती है कोई भी मार्केट में. इट इज फेड टू अ मदर हु हैज डिलीवर्ड पोस्टपार्टम. लड्डू में वो गार्डन क्रेस सीड्स लोग डालते हैं. व्हाई आर गार्डन क्रेस सीड्स पुट इन यू नो योर डाइट दैट टाइम? बिकॉज आपका बच्चा आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना, एंड दैट डिपेंडेंसी इज ऑन you know, that bacha survives on your food. So if you have iron deficiency, how will you make sure your bacha does not have? So iron deficiency तो government भी tackle कर रही है.
गार्डन क्रेस सीड्स आपको डालने हैं आपकी डाइट में, फ्रूट पे स्प्रिंकल करो, उपमा में बना लो, आपको अगर पसंद है तो आप अपने राइस में डालो, आप अपने सुबह के सीरियल में डालो, आप चिल्ले के आटे में डाल दो, एनी हाउ, बट गार्डन क्रेस सीड्स आपको दिन में एटलीस्ट 1 चम्मच यूज करने हैं। पॉइंट नंबर 2, ब्रेकफास्ट में हाउ मेनी ऑफ यू ईट पराठास एंड हाउ मेनी ऑफ यू ईट पोहा? पोहा इज अ वेरी 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 इजी टू डू ब्रेकफास्ट और अ स्नैक। आप लोगों में से कौन पोहा खाता है? Can you tell me how many of you eat poha for breakfast? Anjana, I'll come to the question answer session after I explain the entire nutrition composition. है ना? No one eats poha. Aruna, you don't eat. Jagriti, Jigna, no one eats poha. पोहा नहीं खाता कोई? How sad. Anjana eats poha. चलो good. Soumya also eats poha. No one here eats a poha. Renuka, you don't eat poha. Richa eats poha. Yes, garden cress seeds बोला आपने, जी हाँ, yes सीमा, garden cress, हलीम is the हिंदी name for it. गोपिका is eating, शिल्पी, चलो वेरी गुड, शैली भी हफ्ते में 1 बार पोहा खाती है। अब आपको पता है पोहा is interestingly much higher in iron. जयश्री, आपको पता है पोहा जो होता है ना, आप पोहा का डोसा बना सकते हो, आप पोहा का उपमा बना सकते हो, और पता है राइस से बना होता है पोहा. सो वी नाउ हैव ब्राउन राइस पोहा, वी हैव रेड राइस पोहा. सो ऑल ऑफ यू हु वांट दैट, प्लीज गो अहेड, ओके, एंड हैव योर ब्राउन राइस. हाय अखिला, हाउ आर यू? हैव योर ब्राउन राइस पोहा, हैव योर रेड राइस पोहा, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट आई विल टेल यू हाउ. ओके, पोहा जब बनता है, ठीक है ना, हाँ, अमीशा इज ऑल्सो हैविंग पोहा, गुड अमीशा. सो जब पोहा बनता है, the rice is flattened, right? In English it's called flattened rice, है ना? ओके, सो आपको फ्लैट राइस करने के लिए जो मशीन में वो जाता है ना आपका राइस, वो मशीन आयरन का बना होता है. सो while it is flattening, you know, the rice, उस पे एक कोटिंग आयरन की लग जाती है. सुपर्ब ना? यस. एंड वो आयरन जो है, that iron is coming from a vegetarian source. हाय मुग्धा, वेजिटेरियन सोर्स वाला जो आयरन होता है ना, यस जिग्ना, गुड, वेजिटेरियन सोर्स वाला जो आयरन होता है वो आई हैव सी, इनफैक्ट वी हैव गिवन यू रेसिपीज ऑल्सो. रेसिपीज में जब वीडियो खत्म हो जाए ना तब जाना. इन द रेसिपीज यू विल फाइंड दैट ब्राउन राइस पोहा, रेड राइस पोहा एंड व्हाट वी कॉल एज पावर पोहा. पोहा को पावर पोहा कैसे बनाना है? आपको जब पोहा बना रहे हो ना, उसके बाद बिफोर ईटिंग इट, नॉट व्हेन इट इज ऑन द गैस. यस मीरा, लिसन टू दिस, ओके. आपको वो पोहा निकाल के प्लेट में लेना है और उसके ऊपर आपको, अगर आपकी प्लेट साइज इज दिस मच, अ डिश, ओके, अ पेट्री डिश, ओके, क्वार्टर प्लेट, तो आपको क्वार्टर प्लेट में आधे जितना नींबू प्लीज स्क्वीज करना है. क्यों पता है? क्योंकि नींबू में विटामिन सी है, और ये जो आयरन है वो वेजिटेरियन आयरन है. तो वेजिटेरियन आयरन इतना जल्दी बॉडी में ऑब्जॉर्ब नहीं होता. आप उसको एक फ्रेंड दोगे, आयरन को फ्रेंड मिला विटामिन सी, and both of these will be extremely helpful to you. So easy peasy iron, ठीक है ना? But we wash the poha so the layer is washed off. नहीं शैली, आयरन ऐसे धुल नहीं जाता, वो वाटर सॉल्यूबल नहीं है, तो वो रहेगा, ठीक है ना? So what you have to understand is that you have to eat that poha. Second point, आपको पता है कि abroad OJ, इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट. ऑरेंज जूस पीना है आपको ब्रेकफास्ट के साथ. दिस इज द सेम रीजन. इसीलिए कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्न आयरन में काफी कम है, इसीलिए कॉर्नफ्लेक्स आर फोर्टिफाइड विद आयरन. मैं आयरन की इतनी बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो हेयर फॉल नहीं, आपको हर एक चीज में काम आएगा. एज लेडीज वी मेंस्ट्रुएट एवरी 28 days. ओके, 5 days in a month we are bleeding out 65 ml, or maybe अगर somebody is like PCOS or having heavy bleeding, around 100 ml of blood जाता है. डिम्पल कह रही है आयरन यूटेंसिल्स इज गुड फॉर अस. ट्रू, जी हाँ डिम्पल, रोटी भी जब आप आयरन में बनाते हो या सेकते हो, यस, वो तवा बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन एक बात बता दूं आपको डिम्पल, यू नीड विटामिन सी, ओके. तो अगर आप वहां पे बनाया हुआ रोटी या वहां पे बनाया हुआ अगर आप कोई भी खाना खा रहे हो तो आप उसमें थोड़ा सा लाइम या फिर आपको ऑरेंज या ऑरेंज जूस पीना है, ठीक है ना. सीमा इज सेइंग रेड राइस पोहा खाती है वो, वेरी गुड. सो आयरन इज योर बेस्ट फ्रेंड कम व्हाट मे, ओके. अब दूसरा एक न्यूट्रिएंट है, again it is a mineral, and that mineral is something that we don't hear about very often, and that is magnesium. आपको पता है मैग्नीशियम
काफ़ी कम हो जाता है। अरुणा जी, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज मैंने ना मेरा फोन ऐसे रखा है दैट आई एम नॉट एबल टू रीड व्हाट यू आर सेइंग, ऑल ऑफ यू, कृष्णा, एवरीवन. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आफ्टर द लाइव आई एम गोइंग टू एड्रेस एंड आई एम गोइंग टू टाइप आउट द आंसर्स टू ऑल ऑफ यू. ओके, एंड इंस्टा एंड ऑल तो मुझे पढ़ने हो रहा है. ओके, सो आई वॉज एट अ न्यूट्रिएंट विच वॉज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. और पता है ये न्यूट्रिएंट तो रिलेटेड है डेफिशिएंसी. इसकी डेफिशिएंसी से आपको डिप्रेशन भी हो सकती है, आपको एक्स हो सकते हैं, आपको पेन हो सकता है, और आपका हेयर फॉल तो बाप रे, कैन टच द रूफ. आपको पता है वो न्यूट्रिएंट क्या है, वो मिनरल क्या है? इट स्टार्ट्स विथ एम, मैग्नीशियम. कभी सुना है मैग्नीशियम के बारे में? हैज एनीवन हर्ड अबाउट मैग्नीशियम? नहीं. मैग्नीशियम की शायद ना ऐसा नहीं होगा कोई बंदा जिसने कोई वाइटामिन या मिनरल्स खाए होंगे और उसको मैग्नीशियम का पता नहीं होगा. मैग्नीशियम का पता हर बंदे को होता है. ओके, सो what I will be doing is I will get back with sources of magnesium to you. Or what do you want? You want sources of magnesium? हाँ, बताऊँ आपको कि मैग्नीशियम, yes, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम, yes, 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 everyone knows, correct. मैग्नीशियम is a very very important nutrient. Okay, हाँ, मैग्नीशियम का प्रॉब्लम एक ही है. ओके, okay, I think yes, now everyone can see me. Magnesium is not readily available in the khana that we eat every single day. Rupali, yes, I'm coming there only. She's asking me natural magnesium खाने के तरीके कौन से. पता है मैग्नीशियम हम जो आजकल खा रहे हैं, ओके, उसमें मैग्नीशियम इतना मिलता नहीं है क्योंकि हम खा रहे हैं पैकेज्ड फूड्स, हम खा रहे हैं रेडी टू ईट, हम खा रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए. ठीक है ना? सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कॉन्शियसली नाउ लुक फॉर सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम. ओके, top 5 sources of magnesium, we have it in a post also. Okay, I am asking my team to put a photo of it. Okay, Kailash, you have a photo of magnesium rich foods, put that up. I will be discussing that because एक और बात बता दूं, ये जो sources आएंगे आपको, वो sources ऐसे sources है जो अगर आप उसको भी पैकेज्ड के साथ खाने लगोगे या उसको एक्सेसिवली पका के खाने लगोगे तो वो होना नहीं है. ओके, you are not going to be able to give any kind of credit to what we call as those magnesium sources. Okay, Kailash, magnesium source is possible in the image. I will come back to that, yes, because I need that image to explain everything to them. Okay, so Bhavna, Kailash, anyone is watching this live, just make sure that वो image में आप उसको डाल दो. So when it comes, I will discuss that. Now comes nutrition and nutrients as well as foods that are extremely important. ठीक है ना? आप मुझे ये बताओ, when was the last time you had palak in your sabzi form? And that also a big bowl of palak. When was the last time आपने, yes, I'm going to give you, हाँ, protein vegetarians के लिए foodie 260998 video when it comes to IGTV, तब एक बार देख लेना. Now I'm talking about another very very important nut, okay, and that nut is cashews. देखा डिम्पल, how often do you eat? Very good, काफी लोगों ने पालक खाई हुई है. करेक्ट, आपको आपकी डाइट में पालक डालनी ही है. पालक सूप एंड पालक पनीर. क्यों सौम्या, विंटर्स में क्यों? पालक आपको हर टाइम खाना होगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. Okay, so your diet should be rich in palak, your diet should be rich in pudina, your diet should be rich in pumpkin, your diet, no, palak paratha नहीं, palak की सब्जी चाहिए. Okay, a big bowl of palak सब्जी cooked in low oil, low मसाला, जहाँ अगर आँख बंद करके आप खाओ तो आपको पता चले कि ये पालक है. All right, so you have to make sure that regular palak and kela smoothie, good. Raw palak is going to in fact have a better impact in absorption of nutrients. All right, now it comes to a nut that I was talking about, and that nut is cashew. जी हाँ, हम सबको डर लगता है ना कि कैशू नट्स खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हम आलमंड्स खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा. बट आपको पता है काजू कतरी बड़े मजे से खा लेते हो,
है ना, तो वो काजू कतरी में जितना शुगर है ना, वो शुगर पूरा डाउन चला जाएगा. नो, योर काजू बेनिफिट्स आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली गॉन. काजू शुड नॉट बी रोस्टेड, काजू शुड नॉट बी सॉल्टेड, काजू शुड बी प्योर. ओके हाँ डिम्पल, लेकिन अगर आप दिन में 2 काजू खाओगे ना, एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, दे शुड नॉट बी सॉल्टेड, they should not be fried, they should not be मसाले वाले, and they should definitely not be in the form of काजू कतरी. आपको बहुत 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 फायदा होगा आपके बालों में. Okay, so your hair is, today you learned that your hair is made out of protein. ठीक है ना, आपको प्रोटीन रिच डाइट खानी होगी. Your hair needs iron, your hair needs magnesium, your hair also needs what we call as biotin. ठीक है ना, और बायोटिन भी आपके डाइट में आएगा इफ यू आर ईटिंग योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन गुड अमाउंट्स. आपको पता है दिन में आपको 5 फ्रूट या वेजिटेबल खाने हैं. सो सपोज अगर आज आपने काकड़ी खाई है तो आपको एक पूरी काकड़ी खानी है. देन सपोज यू हैड अ टमाटर, देन यू हैड अ पालक का सब्जी, एंड यू हैड एन एप्पल, एंड देन इफ यू हैड दूधी का सूप. दिस इज व्हाट वी शुड हैव इन अ डे. ओके, इतना आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना ही है. ओके, सो अगर आप दिन में 5 अलग फ्रूट एंड वेजिटेबल या 5 वेजिटेबल और 2 फ्रूट, अगर आप बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस या न्यूट्रिशन कॉन्शियस हो, तो अगर आप कर रहे हो तो आपको वो डालना ही है आपकी डाइट में. ओके, नाउ कम्स द फैक्ट that we have to start answering the questions that you said. Akhila Singh, Akhila, can we eat palak in monsoon? क्यों नहीं अखिला, अच्छे से साफ करो. सी पहले के ज़माने में लीफी वेजिटेबल्स जो ग्राउंड में और रूट वेजिटेबल्स, एंड इनफैक्ट जेंट्स अभी भी नहीं खाते बिकॉज तब के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी. जब इलेक्ट्रिसिटी हुआ नहीं करती थी तो डर लगा रहता था कि दे माइट एंड अप ईटिंग द जर्म्स एंड द वर्म्स दैट आर ग्रोइंग, बिकॉज इन द मॉनसून सीजन वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते हैं. बट पालक इज़ परफेक्टली ओके अगर आप अच्छे से उसको साफ करके खाओ तो. Okay, now I am going back to questions. You have shiny hair. Okay, I have shiny hair, Puneet Chaya, because मैं अपने बालों को ज़्यादा परेशान नहीं करती. Okay, I keep them as they are. I don't make sure that I'm coming on live by making sure they are ironed very well. I just make sure they are clean and I eat very clean. ठीक है ना. साक्षी कहती है शी इज अ थायराइड पेशेंट एंड हर हेयर इज वेरी थिन एंड लाइट एंड डल. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एड्रेस. अभी आपको पता है थायराइड को लेकर हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं. एंड इट्स नॉट ओनली थायराइड. हमेशा आपने सुना होगा मिडिल एज्ड विमेन में कि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस है. एक लेडी के growing years में, okay, right up till the age when she is menopausing, there are many hormones that are playing a role, है ना. और ये hormones जो है वो काफ़ी इफेक्ट करते हैं आपके बालों को. आपको पता है hormones क्या है? Hormones also are made out of protein. तो जस्ट इमेजिन आपका हार्मोनल इम्बैलेंस मेरी वाली टिप से जाएगा कि नहीं जाएगा ना. आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक होगा अगर आप अच्छे से आपका प्रोटीन खाओगे, आपका आयरन खाओगे. अगर हार्मोन्स ठीक ठाक है आपके तो आपके हेयर ओके बहुत 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 ब्यूटीफुल रहेंगे. सो साक्षी, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एड्रेस what we call as your hormonal profile. आपको पता है thyroid can be cured, or sorry I can't say cured, thyroid can be managed, okay, and thyroid can be normalized. You can be tablet free by just being on a very intelligent diet and a lifestyle plan, क्योंकि thyroid एक disorder है. ठीक है ना. एक डिजीज और डिसऑर्डर का फर्क सबको पता है. एक डिजीज वो है, कोविड इज अ डिजीज, मलेरिया इज अ डिजीज, ठीक है ना, होके चली जाती है. बट थायराइड जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो कभी जाता नहीं है. तो जो चीज़ जाती नहीं है उनके लिए डॉक्टर की ज़रूरत है नहीं, उनके लिए आपकी लाइफस्टाइल की ज़रूरत है. तो आपको साक्षी एक हाई प्रोटीन डाइट खानी है. अगर आप मोटे हो या फैट परसेंटेज हाई है थोड़ा कम करो. हेयर विल बिकम प्रिटी फॉर फ्री. ठीक है ना. देन गार्डन क्रेस सीड्स का हो गया आपका. ओके, काफ़ी सारे लोगों ने जवाब दिया है. देयर इज़ अ लिंक आई एम शेयरिंग, ओके, एंड वो लिंक अगर आप लोगे तो आपको आपका आइडियल बॉडी वेट, BMI और आप कितने ओवरवेट हो वो पता चलने वाला है.
ऑल राइट. सो माई टीम इज गोइंग टू पुट अप अ लिंक विच इज कॉल्ड एज द हेल्थ स्कोर. ले लेना, आपको एक ब्लॉग भी दे देंगे जिसमें स्किन एंड हेयर के रिलेटेड बहुत अच्छे फ्रूट्स होंगे. मेरी बेटी का थायराइड बहुत है जबकि उसका वेट 45 के, उसने 45 वेट रिड्यूस किया है और फेशियल हेयर प्रॉब्लम्स भी बहुत है. ओके, सजेस्ट नेचुरल. हालांकि डाइट इज़ वेरी हेल्दी एंड वी आर प्योर वेज. सीमा जी, डाइट अगर आपकी बेटी ने 45 kg वेट रिड्यूस किया है, ओके, तो उसको थोड़ा टाइम दो. ऑल राइट. ये वेट रिडक्शन कितने टाइम पे हुआ है? थायराइड को एक ऐसी डाइट की ज़रूरत है कि जहाँ द फोकस इज नॉट ओनली ऑन वेट लॉस बट ऑल्सो ऑन द डाइट. ठीक है ना. सो सीमा जी, आपको आई विल टेल माई टीम टू ऑल्सो हेल्प यू फर्दर. ऑल राइट. Despite, Richa, you had put this question. Yes, there was someone else also had put a question कि मैं बैलेंस डाइट खाती हूँ. ठीक है ना. मेरा हेयर लॉस फिर भी बहुत इमेंस है, इतना कि मैं अब मेडिकेशन ले रही हूँ. ओके, रिचा, आपकी जो मेडिकेशन है ना, दैट इज द न्यूट्रिशन एंड द न्यूट्रिएंट्स दैट आई एम टेलिंग यू. ओके, डॉक्टर्स डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ गिविंग यू अ डाइट प्लान, है ना. तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा पता है? वहाँ से मेडिसिन. तो या तो आप वो सप्लीमेंट ले लो या तो फिर मेक परमानेंट चेंजेस इन योर डाइट. ओके, एंड डाइट वेल बैलेंस्ड जो आपने यूज किया है वर्ड, आपको see, according to you it may be a very well balanced diet, but a well balanced diet is also something where small things like your skin, your hair, etc. has to be covered. Now if you are under a diet plan of a nutritionist और फिर भी आपको hair fall हो रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए that there are 3 other factors. Okay, factor number 1, there is a problem in the shampoo or the water or the oil you are using. सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपका शैम्पू, ठीक है ना, आपका ऑयल या आपकी जो वाटर जिससे आप धो रहे हो बाल, वो सही है कि नहीं. ऑल राइट. पॉइंट नंबर 2 दैट यू हैव टू चेक इज, क्या आपका पिलो, ऑल राइट, साफ है? क्योंकि अगर आपका पिलो कवर, आपने अगर वो पिलो कवर हफ्ता भर यूज किया है, नहीं, मेरे जैसी फैनेटिक तो रोज पिलो कवर धोती है, लेकिन आप लोग एक दिन छोड़ के एक दिन भी अपना पिलो का कवर चेंज करो. जहां आप सोते हो दैट एरिया शुड बी वेरी वेरी क्लीन. Okay, so any kind of dirt and dust if it is accumulating in your hair, it is not possible. Okay, आपका बैलेंस डाइट भी कुछ कर पाएगा, क्योंकि वो हो जाता है आपका ऑन सरफेस डैमेज. अगर आपको डैंड्रफ है, ओके, अगर आपको कोई भी हार्मोनल इश्यूज या हेल्थ इश्यूज है जैसे एलोपेशिया, उसकी आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी. एलोपेशिया सम पीपल कॉल इट, जहां बॉल्डिंग पैचेस होने लगते हैं. ठीक है रिचा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप जितनी भी बैलेंस डाइट कर लो, लेकिन अगर ये सही नहीं है तो डेफिनेटली वी विल हैव अ प्रॉब्लम विद द हेयर. ओके, करेक्ट. यस, आई थिंक मानसी सिंह वो गार्डन क्रेस सीड्स अपने सांबर में भी डालती है. दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट. ओके, वी हैव, कैन वी टेक पालक हो गया. ये सीमा जी, आपका मैंने आंसर किया. शिल्पी, आपको अगर डैंड्रफ प्रॉब्लम है, यू हैव टू चेक योर शैम्पू, यू हैव टू चेक योर ऑयल, यू हैव टू गो टू द ट्राइकोलॉजिस्ट. ठीक है ना. और उसके बाद आपको आपकी डाइट देखनी है. ऑल राइट. मानसी सिंह, क्योंकि वो स्मूदी लेती है, वो सीड्स लेती है, वो जवार की भाकरी लेती है, उसका हेयर बहुत अच्छा है. मैं भी, आई टेक माई फाइबर, आई टेक माई सीड्स, आई टेक ऑल माई गुड फूड्स एंड लुक एट दिस. ठीक है ना. देन आई हैव हर्बल लाइफ इज गुड. तेजल, हर्बल लाइफ हो या जो भी मील रिप्लेसमेंट हो, जो भी पाउडर्स हो, पिल्स हो, अगर वो अच्छे होते तो आज आई वुड नॉट हैव टू स्टडी आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, इंटर्नशिप, more internship to become a dietitian. So where I spent 7 years, imagine Herbalife is doing that for you in 2 months. All this only leads to a very very temporary result. Okay, जब बंद किया खत्म. पालक if eaten a bowl full causes stomach upset ना. जूही, अच्छे से पका हुआ पालक without any मसालास बहुत अच्छा चलता है. सपना is saying my husband is losing his hair just like his dad. सपना, एक है भाई, we have balding in our genetics. ठीक है ना. सो हमारा हेयर, जैसे हमारा हेयर का स्ट्रक्चर है, whether it is curly, whether it is all that, that depends on, you know, what you call as genetics. Balding is also that. ठीक है ना. सीमा जी, मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर लिया.
Can I have a high protein diet even if I have fatty liver and cholesterol? क्यों नहीं नूपुर, you have fatty liver and cholesterol, आपको फैट रिड्यूस करना है और हाँ आपकी प्रोटीन सोर्सेज जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी बिकॉज पनीर इज हाई फैट, चीज इज हाई फैट. लेकिन अगर आप एग वाइट्स खाओ, अगर आप स्प्राउट्स खाओ, अगर आप पूरी you can easily follow a high protein vegetarian diet. Also there are certain fishes which will not have this high fat and high cholesterol. So yes Nupur, what you should do is look at a diet plan. ठीक है ना. Geeta is saying recently I went angioplasty, blockage and stents were placed. What type of food is suggested? Geeta, no, I cannot give a very generalized diet for this. Let me see what best I can do and help you. ठीक है ना. सलमा इज सेइंग वेट लॉस के लिए कुछ टिप्स दीजिए. सलमा जी जरूर आपको मैं अपने वीडियो लिंक्स भेज देती हूँ. ठीक है ना. कैन यू टेल मी अबाउट डैंड्रफ? डैंड्रफ इज एन इन्फेक्शन विच इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ड्राई स्किन. इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू एनी इन्फेक्शन दैट वी कैच. ओके. और क्या है हमारा, मैग्नीशियम रिच फूड्स की एक पोस्ट आई है. येस आई हैव लाइक्ड दैट कॉमेंट. प्लीज गो एंड चेक दैट. इमेज है क्या वहां पे गाइस? कैन यू डू दैट? इस कोकोनट ऑयल एंड आलमंड एंड कैस्टर ऑयल मिक्स करके लीना अपने बालों में लगाती है. यस लीना, कोकोनट ऑयल जो है, coconut oil is extremely useful in maintaining our hair strength and our hair structure. Almond oil very rich in vitamin E, new hair growth बहुत अच्छे से. Castor oil is something I am not a big fan of क्योंकि वो निकालते निकालते इतना करना पड़ता है मुझे wash. I might as well not have so much of hair loss, ठीक है ना. Yes गीत, आपका हार्मोन प्रॉब्लम है. I will make sure. Okay. Yes मानसी, I think मानसी, are you a client with us? ठीक है ना. रविंदर जी, हाउ आर यू? थायराइड कैन बी रीजन. जी हाँ, थायराइड कैन बी रीजन. अलीव, यूर राइट. अखिला, हलीम को अलीव भी कहते हैं एंड इन गुजराती असेरियो. हाँ, आप उसको ओवरनाइट सोक करके यू कैन बाय एम्प्टी स्टमक. नो नो नो, यू हैव इट विथ अ फूड बिकॉज आई टोल्ड यू नो अ वेजिटेरियन सोर्स ऑफ आयरन नीड्स विटामिन सी. ओके, तो यू एड इट इन अ वेजिटेबल जूस, यू एड इट ऑन टॉप ऑफ योर पोहा और यू ईट इट विथ पोहा एंड लाइम. ऑल राइट, ठीक है ना. Then yes Ravinder, I know you're my client. Now let's look at some questions, many questions that had come here. Okay, Pooja was asking me, Shelly, you need a tricho, I think I lost. I had become for a minute frozen. Questions. There was someone who was talking about post delivery weight loss. मेरे को post delivery weight loss ही आता है ना लाइफ में. Post delivery hair loss, okay, is something that is being asked over here. Should I talk about post delivery hair loss? Next 5 minutes we can talk and then we can call it a day, है ना. After delivery, have you seen or have you experienced hair loss? मुझे तो बहुत हुआ था. Okay, shall we talk about that? हाँ, Archana is saying, Archana यार पढ़ने नहीं हो रहा है. I will come to you. Okay. I think I will talk about it because I'll have to go and I'll have to read. Okay, biotin capsules harm testosterone. No. Makhana helps in balancing hormones. No, makhana is a very healthy snack. ठीक है. All right. Okay. So I have a go ahead from many of you. Ammi, Amman, Akhila, Simran, and lot of people are saying that Leena, I know. ठीक है, चलो. Let's talk about postpartum. पता है when you conceive, okay, we have a good 9 months, and in those good 9 months, all right, there is a saying that the woman looks her best when she's pregnant. That is because हमारे सारे hormones act up कर रहे हैं हमारी बेबी को best of nutrition देने के लिए, and there is a very beautiful flow of estrogen, very beautiful flow of hormones that make you look very very pretty, and that brings a beautiful glow on your face, that brings a beautiful glow on your hair, and during pregnancy that is why our hair looks the best. It is thick, it is nice, it is very very what I would say is my hair was the best in my pregnancy.
Now when you have delivered, okay, so your hormones, female hormones are at the peak when you are pregnant, ठीक है ना, और उसके बाद आपके hormones ऐसे नीचे जाते हैं, and by the 4th month of delivery, when your child is 4 months old, the hormones have reduced and they have come back to normal pre-pregnancy level, okay. तो जो बाल आपने कमाए थे बहुत अच्छे से आपकी प्रेगनेंसी में, नेचुरली वो बाल थोड़े से झरेंगे, बट यू कैन सेव इट, यू नो. हम क्या करते हैं पता है, हम प्रेगनेंसी के बाद अपने आप को भूल ही जाते हैं. इट्स ऑल अबाउट द लिटिल बेबी, राइट. हम हमारी डाइट का ध्यान उसी को लेकर रखते हैं, थिंकिंग दैट हाई फैट डाइट आपको काम करेगी, और अपना आपका बाल का ध्यान रखते हो ना आपके बॉडी का. दैट इज अ बिग रीजन. प्लस यू आर ब्रेस्ट फीडिंग. आपको जब न्यूट्रिशन और आयरन की सबसे ज्यादा जरूरत है, प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत है, आप घी के लड्डू खा के बैठते हो और फिर आप बोलते हो कि आई हैव बिकम फैट, इजंट इट, और मेरे बाल झड़ रहे हैं. तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको अपने बाल नहीं बचा पाओगे. आप डेफिनेटली पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस को टैकल कर सकते हो विद अ वेरी वेरी नाइस डाइट, ठीक है ना. Then I have is black coffee good? Yes Krishna, black coffee is not bad at all. I don't know why you ask, but हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है black coffee में, ठीक है ना. I live in Baroda. Here water is hard. How do I protect myself? अर्चना यार ये वाला क्वेश्चन है ना एक ट्राइकोलॉजिस्ट के लिए है, ठीक है ना. इज इट ओके टू ड्रिंक ऑरेंज जूस? बट यार दीपाली ये ऑरेंज जूस अगर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ऑरेंज जूस है कौन सा, है ना. इफ दैट ऑरेंज जूस इज एन ऑरेंज जूस विच इज फ्रॉम अ पैकेट, यू माइट एज वेल नॉट हैव इट, ठीक है ना. Then we have, should we eat cornflakes? Aruna, no, you cannot eat cornflakes. Krishna, if you are plateaued, ठीक है ना, आपको एक डाइटिशियन की ज़रूरत है. Now, अरुणा is saying cornflakes खानी चाहिए. जी नहीं, मैं तो इसीलिए बोल रही थी कि आपको एक एग्जाम्पल मिले कि कॉर्नफ्लेक्स में ये लोग आयरन शक्ति बोलते हैं, इसीलिए बिकॉज दे एड आयरन, एक्स्ट्रा आयरन, विच यू हैव इट विथ मिल्क. सो एनीवे आपको कुछ मिलने वाला है नहीं. अगर बच्चू कॉर्नफ्लेक्स विथ मिल्क खा रहा है, आई वुड से म्यूसले विथ मिल्क खाना चाहिए उसे, और उसके अंदर थोड़े अच्छे फ्रूट्स भी डाल के, है ना. इट्स मोर हेल्थियर. फिर एक है ख्याति, आई स्टॉप्ड ईटिंग पोहा, इट्स राइस. अरे वाई, क्यों? यू स्टॉप्ड ईटिंग बिस्किट क्या? ठीक है, ओके ओके, very good. Yes Ami, menopause leads to weight gain. All right, I will make sure that you are helped very well with your query. I think with this we should end an hour long live. I hope you enjoyed and had fun with all these question and answer sessions. Also I'm looking at a suggestion for the live video that we should do next. अगर किसी को कोई टिप है तो प्लीज मुझे बताओ. We will be very happy to come and discuss that for you. Until then, bye bye, tata, aujo, and I will see you soon.